درخواست کے مطابق یہاں مکمل الفاظ پر مشتمل مضمون پیش ہے۔ صبر کا انعام مقدمہ۔ صبر اسلامی اخلاقیات کا ایک عظیم رکن ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکلات، مصائب اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں جو شخص صبر اختیار کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی مشکلات کا بہتر مقابلہ کر پاتا ہے بلکہ اس کے اندر روحانی، اخلاقی اور سماجی فوائد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم صبر کی اہمیت، اس کے مظاہر، صبر کے روحانی و عملی فوائد اور روزمرہ زندگی میں صبر کرنے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ صبر کی تعریف اور اقسام۔ صبر ایک وسیع اصطلاح ہے جس کے اندر کئی مراتب شامل ہیں۔ عمومی طور پر صبر کا مطلب ہے مشکل تکلیف کے سامنے ثابت قدمی اور ہمت کا برقرار رہنا۔ صبر کی چند اہم اقسام یہ ہیں۔ ایک، صبر طاعت، اللہ کی رضا کے لیے عبادت، فرائض اور نیک عمل پر ثابت قدم رہنا۔ دو، صبر مصیبت، مشکلات، بیماری، غربت، نقصان کی حالت میں حوصلہ نہ چھوڑنا۔ تین، صبر معصیت، گناہوں، خواہشات اور برائیوں سے خود کو روکنا۔ چار، صبر امتحان، زندگی کی آزمائشوں، تعلقات کے مسائل، احکام پر آنے والی رکاوٹوں میں مستقل مزاجی دکھانا۔ صبر کی روحانی اہمیت، اسلام میں صبر کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بارہا مومنوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے صبر انسان کو نفس کی کمزوریوں پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان صبر کا دامن تھام لیتا ہے تو اس کے قلب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، دعا میں استقامت آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع مضبوط ہوتا ہے۔ صبر کے اخلاقی اور سماجی فوائد۔ صبر نہ صرف فرد کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک صابر شخص گھر میں سکون اور ہم آہنگی لاتا ہے۔ جب والدین، اساتذہ، لیڈرز صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں۔ صبر سے جھگڑے کم ہوتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرتی تعاون میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صابر قوم معاشی و سماجی ترقی کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ مشکلات میں حوصلہ نہیں ہارتی بلکہ مسائل کا حل تلاش کرتی ہے۔ صبر اور امید کا تعلق۔ صبر کا حقیقی رشتہ امید سے ہے۔ صبر وہ قوت ہے جو انسان کو یہ باور کراتی ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے آسانی ضرور آئے گی۔ الف، امید کے بغیر صبر بے معنی ہوتا ہے کیونکہ صبر کا تقاضا ہے کہ انسان کو کسی بہتر نتیجہ کی توقع ہو۔ صبر کے عملی ثمرات۔ ایک، ذہنی سکون، صبر کرنے سے انسان کے دل میں اضطراب کم ہوتا ہے اور وہ تناؤ کا بہتر مقابلہ کر پاتا ہے۔ دو، بہتر فیصلے، جس فرد میں صبر ہوتا ہے وہ عجلت میں کیے گئے فیصلوں سے بچتا ہے اور سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ تین، تعلقات میں درستی، اختلافات اور جھگڑوں میں جو شخص غصہ چھوڑ کر صبر کرتا ہے وہ تعلقات کو برباد ہونے سے بچاتا ہے۔ چار، صحت جسمانی، ذہنی سکون جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ صبر کے نتیجے میں دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور دیگر امراض کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ مشاور اور تاریخ کی مثالیں۔ تاخیر بشریت میں ایسے بہت سے افراد ملتے ہیں جنہوں نے صبر کے باعث عظیم کارنامے انجام دیے۔ ہماری دینی اور دنیاوی رہنما جنہوں نے مشکلات میں ثابت قدمی اختیار کی وہ آئندہ نسلوں کے لیے مشل راہ بنے۔ مثال کے طور پر وہ قومیں جو سیاسی، اقتصادی اور سماجی ابتلاء کا شکار ہوئیں مگر جنہوں نے صبر اور استقامت کا دامن تھاما وہ آخرکار کامیاب ہوئیں۔ اسی طرح فرعون کی کہانیاں بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ صبر وقت کے ساتھ خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبر کا امتحان، مصیبت، غربت اور بیماری۔ زندگی میں اکثر لوگ مالی مشکلات، بیماری یا عزیزوں کے نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں صبر کرنا آسان نہیں ہوتا مگر یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے صبر کا۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے یا کوشش ترک کر دے بلکہ صبر کے ساتھ کوشش بھی جاری رہنی چاہیے۔ جو لوگ صبر اور کوشش دونوں ساتھ رکھتے ہیں وہ زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ثابت ہوتے ہیں۔ آؤ صبر اور دعا کا عمل۔ صبر کو مضبوط بنانے کے لیے دعا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دعا سے انسان اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، امید بحال کرتا ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہے۔ دعا کے ساتھ صبر انسان کو داخلی طاقت دیتی ہے اور مشکل حالات میں استقامت برقرار رکھتی ہے۔ صبر کے روزمرہ عملی طریقے۔ ضبط نفس، جذبات پر قابو پانا اور فوراً رد عمل دینے سے پہلے سوچنا۔ دو، منصوبہ بندی، مشکلات کا سامنا کرتے وقت ایک منظم لائحہ عمل تیار کرنا اور چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنا۔ تین، مثبت سوچ، منفی خیالات کی بجائے حل اور مواقع پر توجہ دینا۔ چار، حمایت طلب کرنا،
दोस्तों खानदान मुशीरों से मशवरा लेना और जज्बाती सपोर्ट हासिल करना। 5 शुक्रगुजारी हाल के छोटे अच्छे पहलू का शुक्र अलिफ दी करना ताकि दिल में उम्मीद बाकी रहे। सब्र और वक्त का रिश्ता। वक्त अक्सर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि मददगार साबित होता है। बहुत सी मुश्किलात वक्त के साथ हल हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। सब्र का मानी ये भी है कि इंसान वक्त को अपना दोस्त बनाए और हर सूरत हाल का फौरी हल ना चाहे। सब्र करना ये सिखाता है कि हर चैलेंज का हल वक्त और मुसलसल कोशिशें आता है। वालिदैन और असातिज़ा में सब्र की ज़रूरत। बच्चों की तरबियत में वालिदैन और असातिज़ा के लिए सब्र बेहद ज़रूरी है। एक तवील अमल है जिसमें गलतियां और धीरज की ज़रूरत होती है। जो वालिदैन सब्र और मोहब्बत के साथ बच्चों की रहनुमाई करते हैं वो बेहतर नताइज हासिल करते हैं। इसी तरह असातिज़ा को भी सब्र के साथ बच्चों की कमजोरियों को दूर करना चाहिए ताकि बच्चे खुद एतमादी पैदा करें। सब्र नहीं बल्कि उजलत के नुकसानात। उजलत में किए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते। आओ तिजारत, तालीम, शराकत दारी या इज़्दिवाजी मामलात में जल्दबाजी दलाइल, गलत फहमियाँ और शिकस्त का सबब बन सकती है। इसके बरक्स सब्र से सोच विचार का मौका मिलता है, तजावीज़ का जायजा लिया जा सकता है और दुरुस्त फैसले किए जा सकते हैं। सब्र की तरबियत कैसे की जा सकती है? 1 रोज़ाना मामूलात में छूटी मुश्किलात को तहम्मुल से बर्दाश्त करने की मशक करें। 2 इबादात और मुराकबा के ज़रिए ज़हनी तवाज़ुन पैदा करें। 3 कामयाबियों को तयशुदा मकासद के तौर पर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें ताकि नाकामी का दाके कम हो। 4 अदब और तारीख़ के क़िस्से पढ़ें जिनमें सब्र की कहानियाँ मिलें ताकि इल्हाम हासिल हो। 5 मुआशरती खिदमत में हिस्सा लेकर दूसरों की मुश्किलात देखें, इससे अपना दर्द कम नज़र आएगा और शुक्रगुजारी बढ़ेगी। सब्र और नबियों की मिसाली ज़िंदगी। ताख़न अंबिया हमें सब्र की बेहतरीन मिसालों से भरपूर मिलती है। नबियों ने मुश्किलात और हक आमेज़ हालात में भी अल्लाह की तरफ रुजू किया और सब्र व इस्तिक़लाल के ज़रिए मिशन को आगे बढ़ाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र वाली दास्तान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मसाइब के बाद साबित कदमी और दीगर अंबिया की ज़िंदगियों से हमें ये सबक मिलता है कि सब्र इंसान को अजीम मंजिलों तक पहुंचाता है। इन मिसालों से मालूम होता है कि सब्र का अजर सिर्फ दीनी लिहाज से नहीं बल्कि दुनियावी कामयाबी और इंसानियत की खिदमत में भी ज़ाहिर होता है। सब्र और इक्तिसादी कामयाबी, कारोबार और पेशा वराना ज़िंदगी में सब्र का बड़ा हिस्सा है। सरमाहकारी, नई शुरुआत या किसी प्रोजेक्ट की कामयाब छोटी वक्त तलब होती है। जो कारोबारी अफराद उजलत में बुलंद नताइज की तवक्को रखते हैं वो अक्सर नाकामी का शिकार होते हैं। सब्र के साथ मंसूबा बंदी और मुस्तकिल मेहनत कारोबारी कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा माली नुकसान के बाद सब्र के साथ मसले का जायज़ा लेकर इस्लाहात लाना कारोबार को दोबारा कामयाब बना सकता है। सब्र मुआफ़ी और ताल्लुकात की बहाली। सब्र इंसान को मुआफ़ करने और गुस्से को कंट्रोल करने की सलाहियत भी देता है। जब किसी के साथ इख्तिलाफ अटूट फूट हो तो सब्र से मसले को वक्ती तौर पर बढ़ने से रोका जा सकता है। सब्र का एक पहलू यह है कि इंसान मुआफ़ करने में भी हिम्मत दिखाए ताकि रिश्ते दोबारा बन सके। मुआफ़ी और सब्र मिलकर ताल्लुकात को दोबारा मजबूत करते हैं और दिलों में मोहब्बत व एहतराम को बहाल करते हैं। सब्र और जदीद दौर की आजमाइशें। आज का तेज़ रफ्तार दूर सब्र की आजमाइश भी बढ़ाता है। सोशल मीडिया, फौरी इत्मीनान और फौरी नताइज की ख्वाहिश नौजवानों में सब्र की कमी का सबब बन रही है। इस सूरत हाल में वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरा सबको मिलकर नौजवानों को सब्र और तहम्मुल की तरबियत देनी चाहिए। उन्हें सिखाया जाए कि अहम कामयाबियां वक्त और मेहनत से हासिल हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में फौरी नताइज मुमकिन नहीं होते। तरबियती मशक़ें और अमली सरगर्मियाँ सब्र की तरबियत के लिए मखसूस मशक़ें मददगार साबित हो सकती हैं। 1 सांस की मशक़ें। जब गुस्सा आए तो चंद गहरी सांसें लेना और सुकून के साथ रद्दअमल देना। 2 रोज़नामचा। रोज़ाना अपने जज्बात और रद्द-ए-अमल को लिखना और ये जांचना कि कहाँ हमने उजलत दिखाई। 3 वक़फ़ा लेना। किसी तनाज़ुर के दौरान बात को ठंडा करने के लिए वक़फ़ा लेना और बाद में मंतकी गुफ्तगू करना। 4 वक्फ़े से मुराक़बा। दिमाग को मुनज़्ज़म करने और तहम्मुल पैदा करने के लिए मुख्तसर मुराक़बे की आदत डालना। 5 हौसला अफजाई के जुमले। खुद को याद दिलाना कि ये भी गुजर जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र और इंसाफ। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान जुल्म और जालिम के सामने खामोश रहे। इंसाफ के हुसूल के लिए भी सब्र की ज़रूरत है। हज्जाज, कानून व अदल के रास्ते और बरवक्त अक़दाम से इंसाफ हासिल किया जा सकता है।
مگر اس میں صبر، منصوبہ بندی اور حکمت عملی لازمی ہے۔ ظلم کے خلاف آہستہ مگر ثابت قدمی سے لڑائی زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ کہانیاں اور مثالیں برائے بچوں کو صبر سکھانے کے لیے کہانیوں کا بڑا حصہ ہے۔ ایک سادہ سی کہانی، ایک چھوٹا درخت جو روز بارش، دھوپ اور سردی میں بڑھتا رہا مگر جلدی میں بڑا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ آخرکار وہ ایک مضبوط سایہ دار درخت بن گیا۔ اس سے بچے سیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ صبر اور مستقل کوشش کامیابی دیتی ہے۔ اسی طرح کھیل اور گروپ سرگرمیاں بچوں میں ٹیم ورک اور برداشت سکھاتی ہیں۔ صبر کے ساتھ حکمت عملی کی ہے۔ صرف صبر کافی نہیں ہوتا بلکہ حکمت عملی کے ساتھ صبر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی طالب علم امتحان میں ناکام ہو تو صرف صبر سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کو اپنی کمزوریوں کا تجزیہ کر کے حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اسی طرح کاروباری دنیا میں مارکیٹ کی تحقیق، منصوبہ بندی اور مستقل اصلاحات صبر کے ہمراہ کامیابی دلاتی ہیں۔ صبر کے خلاف عمومی غلط فہمیاں: 1. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حرکت نہ کرے۔ 2. صبر کم حوصلگی یا تسلیم بنا ہوتا نہیں بلکہ سمجھداری اور حکمت کا نتیجہ ہے۔ 3. صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اپنی حق تلفی برداشت کر لے۔ انصاف کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ عملی مثال: روزمرہ زندگی کا منظر۔ سوچیں کہ اب ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، ایک اہم میٹنگ کے لیے دیر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لمحے جو لوگ عجلت اور غصے میں کر غیر اخلاقی برتاؤ کرتے ہیں وہ اپنی صحت اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے۔ دوسری طرف جو شخص تحمل سے کام لیتا ہے، متبادل راستہ سوچتا ہے، متعلقہ افراد کو اطلاع دیتا ہے اور مناسب قدم اٹھاتا ہے، وہ صورتحال کو بہتر بناتا ہے۔ یہی صبر کی عملی مثال ہے۔ صبر کا انعام دنیاوی اور آخرتی معاوضہ۔ صبر کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، بہتر رشتے، استحکام، اعزاز اور ذاتی ترقی۔ آخرت میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کا وعدہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صبر کے ذریعے ملنے والا اندرونی سکون اور استقامت وہ حقیقی انعام ہے جو کسی بھی مادو کامیابی سے بڑھ کر قدر رکھتا ہے۔ صبر کی نفسیاتی بنیادیں: نفسیات کے مطابق تحمل اور صبر کی خصوصیات میں خود کنٹرول، مستقبل کی منصوبہ بندی اور جذباتی ذہانت شامل ہیں۔ ایسے افراد جن میں یہ خصوصیات مضبوط ہوتی ہیں وہ دباؤ کے وقت بہتر کارکردگی دکھاتے۔ اواناؤ بحرانوں میں جذباتی توازن برقرار رکھنے کا فطری رجحان ہوتا ہے۔ ان عادات کو روزمرہ مشق سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ صبر اور شکر گزاری کا ملاپ: صبر کے ساتھ شکر گزاری کا اتحاد دل کی کیفیت کو بہتر بنا ہے۔ انسان جب شکر گزار ہوتا ہے تو وہ چھوٹی خوشیوں میں اطمینان تلاش کرتا ہے اور مشکلات کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ شکر گزاری صبر کو مزید پاور دیتی ہے اور انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ عملی رہنما اصول: سمری آف پریکٹیکل ٹپس: ہر روز چند منٹ مراقبہ دعا کریں۔ 2. کسی تنازع میں فوری رد عمل دینے کے بجائے توقف کر کے سنبھالیں۔ 3. چھوٹے اہداف مقرر کریں اور انہیں پورا کرنے میں ثابت قدم رہیں۔ 4. اپنے جذبات کو لکھیں اور ان کا تجزیہ کریں۔ 5. مثبت صحبت اختیار کریں جو آپ کو ہمت دی آنا چاہے۔ صبر کوئی کمزور یا غیر عملی صفت نہیں بلکہ پختہ عمل ہے۔ یہ فرد کو مضبوط بناتی ہے، معاشرے کو بامانی انداز میں جوڑتی ہے اور انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں بارہا آزمائشوں کا سامنا ہوگا مگر اگر ہم صبر کو اپنا ہم سفر بنائیں ہم ہر مشکلات کو عبور کر سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں صبر کی مشق کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں اور اس نیک صفت کی ترویج کریں تاکہ ہمارا فردی اور اجتماعی مستقبل روشن ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو PDF میں محفوظ کر کے جا سکوں۔ اسے کا ویڈیو اسکرپٹ بچوں کے لیے آسان زبان 15 نقطوں کا خلاصہ تیار کر دوں۔ بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ صبر کا انعام الفاظ میں مضمون تعارف: صبر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ ہر فرد زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مشکلات، رکاوٹوں، مصائب اور مایوسیوں کا سامنا کرتا ہے۔ صبر وہ خوبی ہے جو انسان کو مشکل لمحات میں ثابت قدم رکھتی ہے اور امید کی روشنی دکھاتی ہے۔ اسلام، تعلیمات، حکمت عملی، ادبیات اور نفسیات سب نے صبر کو ایک اعلیٰ وصف قرار دیا ہے۔ اس مضمون میں صبر کے فلسفے، دینی اور دنیاوی فوائد، تاریخی اور روزمرہ کی مثالیں اور صبر کے اجر و ثواب پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے تاکہ قاری بہتر طور پر سمجھ سکے کہ صبر سے برداشت ہی نہیں بلکہ کامیابی، سکون اور روحانی ترقی
सब्र का मफहूम और अक़साम। सब्र का लुग़वी मतलब है रोका रखना हुआ नकूत बर्दाश्त, मगर अमली तौर पर ये 3 बुनियादी अक़साम में बनता है। पहले मुसीबत में सब्र, जब इंसान तकलीफ दुख नुकसान में साबित कदम रहता है। दूसरे गुनाह से बचने में सब्र, जब इंसान अपने नफ्स के शहवानी दुनियावी लज्जतों को कंट्रोल करता है। और तीसरे अच्छी चीज़ों के हुसूल में सब्र, जब कोई इंसान मेहनत वक्त और इस्तिकामत के ज़रिए मतलूबा मकसद हासिल करने के लिए इंतज़ार करता है। ये तीनों अक़साम ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में कारआमद होती हैं। दीनी मंजरनामा। इस्लाम में सब्र की अहमियत। इस्लाम में सब्र को बहुत बड़ी फजीलत दी गई है। कुरान मजीद में सब्र को मुतअद्दिद मकामात पर अहमियत दी गई है और अल्लाह ताला ने मोमिनों को सब्र करने की तलकीन फरमाई है। सब्र के ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब होता है और सब्र का अजर अजीम करार पाया है। नबी रवायात में भी सब्र की फजीलत बयान हुई है। मुसलमान को सिखाया गया है कि तकलीफ में खुशी और आसानी में शुक्र मनाना दोनों मोमिन की पहचान है। ये बावर कराया जाता है कि दुनिया की आर्जी तकालीफ सब्र करने वाले के लिए आखिरत में अजीम सवाब का जरिया बन सकती। तारीख मिसालें सब्र के अमली नमूने। तारीख में सब्र की कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनसे इंसान सबक लेता है। पैगंबरों की जिंदगी अनमोल मिसालें हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र आमेज़ी, उनके जिस्मानी और माल औलाद के नुकसान के बावजूद अल्लाह पर ईमान और रज़ामंदी एक ऐसी कहानी है जो सब्र की इंतहा दिखाती है। इसी तरह दीगर अंबिया और औलिया किराम ने मुश्किलात में सब्र से अजीम कामयाबियां हासिल कान। मिसालों से ये सीखने को मिलता है कि सब्र आर्जी रुकावटों को पार करके कामयाबी की तरफ ले जाता है। नफ़सात फ़वाइद। सब्र न सिर्फ दीनी बल्कि नफसियाती तौर पर भी बेहद फ़ायदामंद है। सब्र रखने वाला फ़र्द जज्बाती तौर पर मुस्तहकम होता है, इसका दिमागी दबाव कम रहता है और वो बेहतर फैसले करता है। असबी तनाव, स्ट्रेस और इज़्तिराब एंग्जाइटी के दौर में सब्र इंसान को पुरसुकून रहने में मदद देता है, क्योंकि सब्र दिल और दिमाग को सुकून फराहम करता है और फौरी रद्द अमल की बजाय सोच समझकर कदम उठाने की सलाहियत देता है। नतीजता तवील मुद्दती में ये फ़र्द की सेहत, रिश्तों और पेशा वराना ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होता है। मुआशरती फ़वाइद। सब्र समाजी ताल्लुकात को भी मजबूत बनाता है। ख़ानदान, दोस्त कम्युनिटी के अफराद एक दूसरे के साथ तहम्मुल से पेश आते हैं तो इख्तिलाफ़ात हल हो जाते हैं और रिश्ते कायम रहते हैं। तहम्मुल और बर्दाश्त का माहौल मुआशरे में अमन व इत्तिसाफ़ को फ़रोग़ देता है। नाफरमानी या उजलत में किए गए फ़ैसले अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि सब्र से बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल मिल जाता है और मुआशरती हम आहंगी बरकरार रहती है। मुआशरा तालीमी मैदान में सब्र किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। एक तालिब इल्म जो मुस्तकिल मेहनत करे और नाकामियों के बावजूद दोबारा कोशिश करे, आखिरकार कामयाब होता है। कारोबार में भी फौरी मुनाफा की बजाय सब्र से की गई सरमायाकारी और मंसूबा बंदी ज़्यादा पायदार नताइज देती है। सब्र रखने वाला फ़र्द तवील मुद्दती अहदाफ के लिए तेज़ी वाले फितरी लज्जतों को कुर्बान करने के काबिल होता है और यही आदत इसे माली और पेशा वराना कामयाबी की तरफ ले जाती है। सब्र और हिकमत अमली। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि तहम्मुल के साथ हिकमत अमली अपनाना भी है। इंसान को चाहिए कि वो सब्र को अमल में बदल दे, हालात का जायजा ले, मंसूबा बनाए, वसाइल को मुनज़्ज़म करे और मुस्तकिल मेहनत जारी रखे। सब्र के साथ मंसूबा बंदी और हिकमत अमली जब मिलती हैं तो नताइज नुमायां और देरपा होते हैं। इसमें अज़्म, वक्त की कदर और अमली इक़दामात शामिल होते हैं जो सब्र के निसाब को मुकम्मल करते हैं। सब्र की तरबियत। रोज़मर्रा में अमली मशक़ें। सब्र सीखा जा सकता है। रोज़मर्रा की छोटी छोटी मशकों से सब्र मजबूत होता है। मसलन ट्रैफिक में तहम्मुल से रहना, किसी के गलत रवैये पर फ़ौरन जवाब देने के बजाय एक लम्हा रुक कर सोचना, तेज़ी से हासिल होने वाले फ़वाइद को छोड़कर तवील मुद्दती अहदाफ के लिए मेहनत करना, नमाज, मुराक़बा और नींद व खुराक का ख्याल रखना भी इंसान के हौसले और ढारस को बढ़ाता है। मज़ीद बरह किसी आदत को बदलने के लिए छोटे कदमों से आगाज़ करें। हर दिन एक छोटी कामयाबी आपके अंदर की खूब बर्दाश्त को बढ़ाती है। मशहूर अक़वाल और हिकमत अमल। दुनिया के दानिश्वरों, शायरों और रहनुमाओं ने सब्र की तारीफ़ की है। सब्र के बारे में कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। ये मुहावरा इस हकीकत को खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है कि आर्जी मुश्किलात को बर्दाश्त करने का नतीजा अमूमन शानदार होता है। इसी तरह हर कामयाब शख्सियत के पीछे किसी न किसी सूरत में मुस्तकिल मिजाजी और सब्र होता है। ये अक़वाल हमें याद दिलाते हैं कि शिताबकारी के बजाय साबित कदमी बेहतर रहनुमाई देती है। सब्र में ईमान का किरदार।
मोमिन के लिए सब्र का मतलब ये भी होता है कि वो अल्लाह की मर्जी और हिकमत पर भरोसा रखे। मुश्किल वक्त में ईमान का सहारा इंसान को तसल्ली देता है और उम्मीद की रोशनी बख्शता ही दुआ और इबादत से दिल को करार मिलता है और उससे सब्र में मजीद इस्तेहकाम आता है। इस्लामी तालीमात में बात आया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और उनकी आजमाइशों के बाद आसानी जरूर देता है। एतमाद की बिना पर इंसान मुश्किलात को बहुक्म इलाही बर्दाश्त करता है। इम्तिहान और आजमाइश, हिकमतें ज़िंदगी की आजमाइशें अक्सर हमारे किरदार को परखती आमसाब, बीमारी, गम, नाकामी, ये सब इम्तिहानात इंसान को बेहतर बनाने और उसके ईमान को मजबूत करने के लिए आते। अवसर का हकीकी मकाम तब नुमायां होता है जब इंसान उन आजमाइशों में हौसला बरकरार रखे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। बहुत सी बार आजमाइशें इंसान को इखलाकी तौर पर निखारते हैं, इसकी हिम्मत बढ़ाती हैं और आने वाले वक्त के लिए तैयारी कराती हैं। सब्र और शुक्र का तवाज़ुन, सब्र के साथ शुक्र भी ज़रूरी है। शुक्रिया गुजारी इंसान के दिल को खुश और मुतमईन रखती है। जब मुसीबत के वक्त भी इंसान अल्लाह के दिए हुए अच्छे पहलुओं का शुक्र अदा करे तो इसका सब्र आसानी से बढ़ता है। शुक्र रखने वाला इंसान अपनी हालत में खैर ढूंढ लेता है और मायूसी के अंधेरों से निकल आता है। इस तरह शुक्र और सब्र एक दूसरे के मुआविन बनकर इंसान की रूहानी नफसियाती तरक्की का सबब बनते। आवे अमल कहानियाँ आम आदमी की जिंदगी से। एक किसान की मिसाल लीजिए जो साल भर मेहनत करता है मगर बारिश कम होने की वजह से फसल कम निकलती ही वह मायूस नहीं होता। अगले साल बेहतर बीज, बेहतर तरकाश्त और सब्र के साथ दोबारा मेहनत करता है। आखिरकार मेहनत रंग लाती है। इसी तरह एक तालिब इल्म जो मेहनत के बावजूद इम्तिहान में नाकाम हो, सब्र से दोबारा पढ़ाई शुरू करके कामयाब हो सकता है। ये सादा कहानियाँ हमें बताती हैं कि सब्र के साथ मेहनत और सीखने की कोशिशें हमें कामयाबी तक पहुँचाती हैं। सब्र और रिश्तेदारियों में मुफाहमत, घरेलू और रोमांसी ताल्लुकात में सब्र बहुत अहम है। इख्तिलाफात, गलत फहमियाँ और छोटे मोटे झगड़े लाजमी हैं, लेकिन उनमें सब्र और तहम्मुल से बातचीत होने पर रिश्ते मजबूत रहते हैं। एक बेहतरीन साथी वो होता है जो शर्कन हयात के गलती पर फौरालिफ बेरहमी जाहिर करने के बजाय तहम्मुल से मामला हल किरिया से न सिर्फ रिश्ते को बचाया जा सकता है बल्कि एक दूसरे की कदर और मंजिलत भी बरकरार रखती है। सब्र के मुमकिना कोताहियाँ और गलत फहमियाँ, ये ज़रूरी है कि सब्र को तहम्मुल और लापरवाही में फ़र्क किया जाए। बाज़ लोग सब्र को बहाना बनाकर गैर मुनसिफाना सलूक बर्दाश्त कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए कदम नहीं उठाते। हकीकी सब्र वो है जो हिकमत और काबिलियत के साथ हो। जब ज़रूरत हो तो अक़दाम करें और जब सब कुछ आपके कंट्रोल में ना हो तो सब्र करें। सब्र को कमज़ोरी समझना भी गलत है, ये दरअसल एक ताकत है जो मुस्तकिल मिजाजी और हिकमत के साथ मिलकर काम करती है। सब्र का अजर दुनिया और आखिरत। दीनी नुक्ताए नज़र से सब्र का अजर न सिर्फ दुनियावी फ़ायदों में नज़र आता है बल्कि आखिरत में भी अजीम अजर मुकर्रर है। कुरान और सुन्नत में बयान है कि सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम और अल्लाह की मोहब्बत है। दुनिया में भी सब्र के नताइज अक्सर देर से मगर पायदार अंदाज में मिलते। आओ 72 रिश्ते, इस्तिकामत, एतमाद और मुनफत बख्श नताइज। यूं सब्र एक ऐसी सरमायाकारी है जो वक्त के साथ बढ़ती है। सब्र और उम्मीद कामयाबी की कुंजी। सब्र की कुव्वत जब उम्मीद के साथ मिलती है तो इंसान हैरत अंगेज तौर पर मजबूत बन जाता है। आमद इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और सब्र इसे मुस्तकिल रखता है। मायूसी में उम्मीद और मुश्किल वक्त में सब्र, ये दोनों अनासिर मिलकर इंसान को वो ताकत देते हैं जो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। एक कामयाब जिंदगी के पीछे अक्सर यही दो सुकून होते हैं, सब्र और उम्मीद। नताइज और अमली सिफारिशात। सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए चंद अमली तजावीज़ ये हैं। 1. रोज़मर्रा की छोटी मशक़ें करें। ट्रैफिक लाइन आ इंतज़ार के मौके पर तहम्मुल। 2. मकसद मुकर्रर करें और उनके हसूल के लिए मंसूबा बनाएं। छोटे अहदाफ तय करें ताकि फौरी काम आबिया आपका हौसला बढ़े। रूहानियत, मुराकबा आ नमाज को मामूल बनाएं ताकि दिल को तसल्ली मिले। 4. अपनी सोच को मुस्बत रखें। नाकामी को वक्ती समझें और सीखने का हिस्सा बनाएं। 5. रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ तहम्मुल से पेश आएं। मसले को बातचीत के जरिए हल करना। सब्र किसी भी इंसान की जिंदगी में एक रहबर की मानिंद होता गया। मुश्किल वक्त में हिम्मत, शिकस्त के बाद दोबारा उठने की सलाहियत और कामयाबी के सफर में इस्तिकामत देता। हिदे नफसियाती, मुआशरती और अमली तौर पर सब्र के फ़वाइद बेशुमार हैं। सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से ना
صرف ہم اندرونی سکون حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں بھی روشنی لے آتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایک فعال اور محنتی روش ہے جو انسان کو اعلیٰ مقاصد تک پہنچاتی ہے، اور اسی راستے پر چل کر انسان دنیا و آخرت دونوں میں بہترین ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ سبق آموز نکات بچوں کے لیے مختصر کہانی میں بھی تبدیل کر دوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مضمون کو نکات کی شکل میں 15 منٹ کی تقریر/لیکچر کے طور پر تیار کروں؟ درخواست کے مطابق یہاں مکمل الفاظ پر مشتمل مضمون پیش ہے۔ صبر کا انعام مقدمہ۔ صبر اسلامی اخلاقیات کا ایک عظیم رکن ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکلات، مصائب اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں جو شخص صبر اختیار کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی مشکلات کا بہتر مقابلہ کر پاتا ہے بلکہ اس کے اندر روحانی، اخلاقی اور سماجی فوائد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم صبر کی اہمیت، اس کے مظاہر، صبر کے روحانی و عملی فوائد اور روزمرہ زندگی میں صبر کرنے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ صبر کی تعریف اور اقسام۔ صبر ایک وسیع اصطلاح ہے جس کے اندر کئی مراتب شامل ہیں۔ عمومی طور پر صبر کا مطلب ہے مشکل تکلیف کے سامنے ثابت قدمی اور ہمت کا برقرار رہنا۔ صبر کی چند اہم اقسام یہ ہیں: 1. صبر طاعت، اللہ کی رضا کے لیے عبادت، فرائض اور نیک عمل پر ثابت قدم رہنا۔ 2. صبر مصیبت، مشکلات، بیماری، غربت، نقصان کی حالت میں حوصلہ نہ چھوڑنا۔